दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल राहुल गांधी ने लोकसभा में एज लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो लोकसभा या राज्यसभा या कहें संसद में जो चर्चा चल रही है, उसमें एक भाषण दिया। उस भाषण में कुछ ऐसा तो नहीं था जो संविधान से मतलब रखता हो, लेकिन फिर भी जो उनका आधे घंटे का भाषण है, थोड़ा उसको सुनिए और हम साथ में उसको एनालाइज करेंगे कि राहुल गांधी क्या बोलना चाह रहे थे और क्या वो बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम आपके सामने राहुल गांधी का वो भाषण जो संसद टीवी से मैंने लिया है सभार, उसको मैं प्रस्तुत करता हूं और आपके सामने हाजिर करता हूं और फिर डिस्कस करते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके के नेता हैं और ये आदमी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो यहाँ पर शुरू। Thank you, Speaker Sir, for letting me speak today on the Constitution. Speaker Sir, in my last few speeches, I spoke about the concept of Abhay Mudra, the concept of fearlessness, truth, and non-violence. And I showed the House images of our different religions displaying this Abhay Mudra. People call the Constitution the longest written constitution in the world. But the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophy. दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिसंबर का महीना है, दिल्ली में भयंकर सर्दी है, सारे जितने भी दूसरे संसद सदस्य हैं उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ टी शर्ट पहन करके आया हुआ है। इसे पता नहीं क्यों गर्मी नहीं लगती, क्या फूंक करके आता है। देखिए, philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice. परसों राजनाथ सिंह ने बोला था कि ये जो गांधी परिवार है ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जेब में रखता है। उनका मतलब ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आदर नहीं करता है, सिर्फ जेब में रखता है, जब चाहते हैं जब अमेंड कर देते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी दिखा रहा है। And the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow.
a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought, and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, दोस्तों, इस क्रिश्चियन माँ के लड़के और पारसी बाप के लड़के, मतलब पारसी बाप का लड़का है ना ये, मैं अगर फिरोज गांधी को पारसी समझूंगा तो राजीव गांधी को भी पारसी समझूंगा, तो पारसी बाप का लड़का और क्रिश्चियन माँ का लड़का, इसकी हिम्मत है कि पार्लियामेंट के अंदर मनुस्मृति दिखा रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत ये नहीं होगी कि ये कुरान को कभी दिखाए। कुरान को दिखाएगा तो जो इनको वोट देने वाले हैं वो इसका गला काट देंगे। सुनिए आगे क्या बोल रहा है। It's nice that all of you are so-called defending the Constitution, but I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए।
स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे झूठ बोल रहा है, कुछ भी। जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के 6-7 साल का युवा, अरे क्या पी करके आता है तुम पार्लियामेंट में यार? 6-7 साल का युवा होता है? देखिए दर्शकों, सुनिए क्या बोल रहा है। 6-7 साल का युवा, इसकी बातों में कोई कोहेरेंट नहीं है। ये अगर मान लो गलती से कभी हिंदुस्तान की जनता का भरोसा नहीं है, यहाँ पर चाटुकारों की कमी नहीं है, अगर कहीं गलती से कांग्रेस को दोबारा से सत्ता मिल गई तो इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये देश का क्या हाल करेगा? सुनिए। एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। वाह, राहुल गांधी क्या बोल रहा है ये? तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। दर्शकों, इस बात को एनालाइज करो। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना होता है। तो जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं गर्मी में, वो तपस्या कर रहे होते हैं, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं। तपस्या का मतलब भाई, खैर ये तो हिंदू संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं, तपस्या के बारे में क्या जानेगा। और इसके चाटुकार पीछे बैठे हुए सरदार, 4 सरदार दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ को हिरडा का लड़का दिखाई दे रहा है, ये गगोई दिखाई दे रहा है, ये लोग शैलजा जी बैठी हुई है। क्या यार, ताली कैसे बजाते हो? क्यों बजाते? कितना चाटुकारी करोगे यार? समझिए, हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो पब्लिक हंस रही है, क्या बात है। अपोजिशन मतलब जो कांग्रेस वाले वो हंस रहे हैं कि इवन अश्विनी वैष्णव हंस रहे हैं, किरण रिजिजू हंस रहे हैं, मेघवाल साहब हंस रहे हैं। क्या मतलब हद कर दी। क्या इस चीज को दोबारा थोड़ा देखा जाए, फिर से देखा जाए इसको, फिर से देखो। यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए, हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने
एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ध्वजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से शरीर गर्म किया उसने, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था। मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, ये मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि द्रोणाचार्य ने पूछा, तो द्रोणाचार्य जी ने, Sir, the PM will not speak. You have to understand. If you are not giving order, Prime Minister has to speak. That's what I want. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा, आप धमकी बोला करिए। एक मिनट क्या द्रोणाचार्य जी ने, कार्य मंत्री बोले कितना डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, और ये कहानी सुना रहा है द्रोणाचार्य के एकलव्य की। आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे
जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही आप अरे किसने हिंदुस्तान काटा? के युवाओं का सबका अंगूठा झूठा बोल रहे काटते हैं, जोर से नहीं काटा। हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। सर, स्पीकर सर, जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। एक तरफ कौन सर बोले जी, मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए। आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप स्पीकर सर, आप राष्ट्रपति नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है, इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए, उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए। बैठे बैठे कर रहे हैं सर, 5 बजे अपनी बैठे बैठे करेंगे। 5 बजे देखिएगा, 5 बजे देखिएगा क्या करते हैं। स्पीकर सर, मिलेगा। मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। हाथरस में 4 साल पहले एक लड़की का बलात्कार होता है। गैंग रेप होता है। 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं
2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया, ये आदमी फिर झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने बोला है कि गैंग रेप नहीं हुआ था और ये बोल रहा है गैंग रेप हुआ था। वो जो मृत लड़की है उसकी इज्जत के ऊपर ये सवाल उठा रहा है। मेरी तो योगी आदित्यनाथ से प्रार्थना है कि इसको उठा करके पॉस्को में बंद करो। वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार ले ले अपने पास। अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस। अरे राहुल गांधी, शर्म करो। आपस में झगड़ा हुआ था, टर्किश का पठानों का, गोली उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारी थी। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है,
वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो और मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये बेवकूफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलने के लिए आया था और क्या बोल करके गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का थोड़ा जवाब सुनाता हूं। वो सुनिए, डॉक्टर शिंदे ने इसको किस तरीके से लतेड़ा है। डॉक्टर शिंदे जो महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र हैं और ये शायद दूसरी बार लोकसभा में आए हैं। थोड़ा सुनिए। तो आपने और आपकी पार्टी ने किया। धन्यवाद सर। श्रीकांत शिंदे, धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ स्पीच हुई है ना उनकी, स्पीच हुई है। 9 पॉइंट अभी उनकी स्पीच हुई है। चालू कर दो। आप बैठिए, स्पीच 9 पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीच हुई है, टेबल कर देंगे इसको। अध्यक्ष जी, हाँ इसको टेबल कर देंगे, आप ये कर देंगे। आप बोलिए श्रीकांत शिंदे जी। मैं कहूंगा जब कर देना आप सभी लोग है ना खुद ही डायरेक्शन देने लग जाते हैं। श्रीकांत शिंदे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या आपने मुझे आज संविधान के 75 वर्ष पर हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान के सदस्य और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस सदन में हमारे संविधान, जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का और हमारे संसद का स्तोत्र है। मैं अभी राहुल जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहाँ पर किया। गए वक्त आप सुन लीजिए, अभी हमने आपका सुना। गए वक्त भी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी आए नहीं। अभय मुद्रा जो है वो नॉन वायलेंस सिखाता है, लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा कि ये यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर इन्होंने कहा, आप बैठिएगा प्लीज। इन्होंने यहाँ पर बोला, आप बैठिएगा प्लीज। अरे आप प्लीज सुनो भी सीख लो। एक्सक्यूज मी, बैठिए, अभी उनको बोलने दीजिए।
You please don't talk in between. I will give you a chance. अरे बाहेर आहे त्याच्यातून, घरी बसवलं सगळ्यांना आता. कोण आहे? Please address the chair. Please address the chair. Yes. No. आज यहाँ पर अभय मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं. अभय मुद्रा जो है नॉन वायलेंस के बारे में सिखाता है, लेकिन इनको ये भूल गए 1984 में नॉन स्टॉप वायलेंस करने का काम जो है सिख भाइयों के साथ इन्होंने किया. इन लोग को ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने कहा कि युवाओं के जो है अंगूठे काट रहे थे. याद कीजिए 1964 का वर्ष, जहां पर 1070 कम्युनल राइट जो है इनके शासन में हुए. याद कीजिए कार सेवकों पर गोलियां इन्होंने चलाई. याद कीजिए 1993 का बम ब्लास्ट, जब ये सीरियल बम ब्लास्ट जो है बंबई में हो रहे थे, इन्हीं के कार्यकाल में हुए. गए 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट जो है मुंबई में नहीं हुआ, देश भर में नहीं हुआ. ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं. सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं. मुझे इनसे पूछ रहा है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहाँ पर. मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा. आपसे बात कर रहा हूँ. रिस्पॉन्डिंग टू लेटर written by Pandit Bakle, Secretary to the Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak, making plans for celebrating the birth centenary of Savarkar. In her letter, Honorable Indira Gandhi ji, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना. सिंधे का लड़का भी रियली, सुनिए, देखिए नौजवान है क्या बोल रहे हैं. मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है. इसी संविधान ने आज हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं. आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सब श्रेय जो है संविधान का है. आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया. Sir, he took my name, sir. He took my name, sir. I'd like to answer the question. I will give you a chance, sir. इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 लाकर खड़ा कर दिया. और इसी संविधान की ताकत महाराष्ट्र की लोगों ने. No, you can't do that. I'm talking to him. I'm saying, I'm not ending, sir. Sir, I will certainly give you not the ending, chance. sir. I will certainly give you the chance. Sabhabati Please Mode, I am sit not down. ending. I am not ending, sir. After his speech, he is not ending. इसी संविधान ने सर देखिए ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा संविधान है? हाँ, चेयर के पास कैसे आ सकते हैं? हाँ, Sir, he is not yielding. ये चेयर के पास आ गए. Yielding. After he completes, I'm giving you the chance. संविधान की दिवाली देते हैं सर ये. Let him continue. After he completes, I'm giving you the chance. Sir, I am not ending. No, sir. You don't do this.
I am not ending, sir. इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया और इसी संविधान की ताकत ने महाराष्ट्र की लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया जहां पर महाविकास आघाड़ी मिलकर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है बना नहीं पा रही है। आज उस संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और ये संविधान कितना मजबूत है उसका में आज उस संविधान के 75 वर्ष हुए हैं और ये संविधान कितना मजबूत है उसका मैं उदाहरण देता हूँ। टॉम गिन्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी मिर्ची लग गई राहुल गांधी के चाटकारों को। 1789 के बाद अपनाए गए विभिन्न देशों के 200 से अधिक संविधान का अध्ययन किया। उनके अनुसार पूरे विश्व में संविधान की औसत लाइफ सिर्फ 17। दोस्तों, ऐसा नेता होना चाहिए जो राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दे। बहुत हो गया, राहुल गांधी का मैंने आपको लेक्चर सुना दिया और शशिकांत शिंदे का उनको काउंटर सुना दिया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।